خبروں میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے MQM کے یوم سوگ کے حوالے سے۔ بالکل، متحدہ قومی موومنٹ کی پرامن ہڑتال اور یوم سوگ کی اپیل پر کراچی میں کاروبار زندگی معطل ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سوسائٹی کے ذمہ دار سہیل احمد کا قتل، MQM سوگ میں کراچی سمیت سندھ بھر میں یوم سوگ اور ہڑتال کا اعلان۔ MQM کی اپیل پر شہریوں کا مثبت جواب۔ روزانہ شہر کی سڑکوں پر عدد صبح دوڑتی گاڑیاں آج پارکنگ میں ہی کھڑی ہیں۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے آج گاڑیاں سڑکوں پر نہ لانے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے نجی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹی دے دی گئی ہے۔ جامعہ کراچی اور دیگر جامعات میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دی گئے ہیں۔ پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز بھی رات گئے بند ہو گئے تھے۔ دواتر کو جانے والے شہری سٹاپ پر بسوں کا انتظار کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ شہر کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں۔ چیئرمین سندھ تاجر اتحاد نے بھی تمام کاروباری مراکز بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ MQM کے یوم سوگ پر کراچی سمیت سندھ بھر میں معاملات زندگی معطل ہیں۔ ہمارے نمائندگان ہمیں مختلف شہروں سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رافع حسین اور ہمارے ساتھ حیدرآباد سے موجود ہیں زاہد کروڑو۔ پہلے رافع، آپ سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کراچی شہر کی کیا صورتحال ہے یوم سوگ کے حوالے سے؟ جی بالکل سمیہ، آج MQM کی جانب سے سندھ بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور پورے ملک میں پرامن یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ MQM کی تمام سیاسی و تنظیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ نماز ظہر کے بعد قتل کیے جانے والے سہیل احمد کی نماز جنازہ سندھی مسلم سوسائٹی میں ادا کی جائے گی، جبکہ تدفین سوسائٹی قبرستان میں ہوگی۔ شہر کی اگر صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات کی گئی ہے۔ رینجرز کی اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب شہر کے تمام بڑے تجارتی مراکز مکمل طور پر بند ہیں۔ تمام ہول سیل مارکیٹیں، تمام ریٹیل مارکیٹیں اور بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سڑکوں پر بالکل نہیں ہے۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد اور تمام تاجر تنظیموں نے MQM کے یوم سوگ کی حمایت کی اور آج اپنا کاروبار بھی بند رکھا ہے اور ٹرانسپورٹ بھی مکمل طور پر بند رکھی ہے۔ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہیں اور جو آج امتحان ہونے تھے ان کی بھی نئی تاریخ کا اعلان ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ طارق روڈ پر آج جو کارکن سہیل ہیں ان کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی، اس حوالے سے انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت سندھی مسلم سوسائٹی میں جہاں پہ نماز جنازہ سہیل احمد کی ادا کی جائے گی وہاں پر تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جو ٹینٹس ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں، صفیں بھی یہاں پر تیار کر لی گئی ہیں۔ میت جو ہے وہ ایدی سردخانہ سراب گوٹ سے اس وقت ان کی رہائش گاہ پہنچا دی گئی ہے، جہاں پہ ان کے جو لوائقین ہیں وہ آخری دیدار کریں گے، جس کے بعد نماز ظہر کے بعد سندھی مسلم سوسائٹی کی جو روڈ ہے وہاں پر یہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ان کی تدفین سوسائٹی قبرستان میں کی جائے گی۔ MQM اراکین رابطہ کمیٹی نماز ظہر کے وقت یہاں پر پہنچیں گے اور وہ یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ MQM کے قائد الطاف حسین اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور MQM کی جانب سے بھی کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ ٹھیک ہے رافع، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے زاہد کروڑو بھی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے موجود ہیں۔ زاہد، حیدرآباد کی آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر بھی معمولات زندگی مکمل طور پر معطل ہیں؟ جی حیدرآباد شہر میں بھی یوم سوگ کے حوالے سے دکانیں کاروبار مکمل طور پہ بند ہے، جبکہ روڈوں سے ٹریفک بھی غائب ہے۔ یہاں پہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو مشتعل کارکن ہیں انہوں نے ٹائر نظر آتش کیے اور آنے جانے والی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا ہے۔ اس وقت جس جگہ ہم موجود ہیں وہ کوہ نور چوک کہلاتا ہے، جو کہ انتہائی مصروف ترین حیدرآباد کا علاقہ ہے۔ شاہی بازار بھی یہاں پہ لگتا ہے، اسٹیشن روڈ بھی یہاں پہ لگتا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ بالکل سناٹا ہے۔ صرف کچھ لوگ ہیں جو کہ اس علاقے کے ہی رہنے والے ہیں، وہ آگے پیچھے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، جبکہ اس مصروف ترین روڈ پہ جو ہے وہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آج اس سوگ کے دن کی خالی روڈ کا فائدہ لے رہے ہیں۔ شہر میں اس وقت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے اور مسلسل وہ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جو آنے جانے والی موٹر سائیکلز ہیں ان کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ لطیف آباد 6 نمبر میں رینجرز نے چیکنگ کے دوران ایک موٹر
साइकिल सवार को पकड़ा है, जिससे टीटी पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस रेंजर्स ने उस चेकिंग के दौरान जिन 2 लड़कों को पकड़ा है उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है और शहर में इस वक्त जो कारोबारी जिंदगी है वो मफलूज हुआ है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी शहर में तैनात है, अलबत्ता सड़कों से ट्रैफिक मामूल से कम है। बहुत शुक्रिया जाहिद, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद थे। राफे, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के यौम सोग पर कराची के छोटे बड़े तिजारती मराकिज बंद हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद सलाउद्दीन, हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करें। मोहम्मद सलाउद्दीन, बताइएगा, रोडों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, एमक्यूएम के कारकुनों की मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ एमक्यूएम की जानिब से आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। खासतौर पर कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। गली मोहल्लों की भी दुकानें हमें बंद दिखाई दी। मुकम्मल तौर पर सड़कों पर बिल्कुल ट्रैफिक ना होने के बराबर है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। कौम जो है वो सरापा एहतजाज है। एमक्यूएम के कारकुनान ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधी हुई हैं और जगह जगह सियाह बैनर्स भी लगाए गए हैं। ओवरऑल शहर की बात करें तो शहर में मुकम्मल तौर पर कहीं पे से भी कोई ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां भी गश्त करती हुई दिखाई दी, लेकिन पुरअमन तरीके से आज यौम सोग मनाया जा रहा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। जी ठीक है सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। उधर एमक्यूएम के मकतूल कारकुन सुहेल अहमद के भाई ने कहा कि इंसाफ का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया, भाई के कत्ल का बदला नहीं लेंगे, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। उसकी मेरे सर पे लगी हुई है भाई, तो यार रिश्ता खून का होता है ना, तो अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दिया। अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है और अल्लाह महासाबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह उन बेगुनाहों के लिए रिहाई का मामला आसान करे, इसके खून के बदले अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले। तो ना इसने किसी का कुछ, ना उन्होंने इसको कभी देखा था, ना इसने उन्हें कभी देखा था। न हम बर्बाद हो, ना आप बर्बाद हो, सब आबाद हो और सब इस मुल्क के लिए अल्लाह आसानियां पैदा करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कारकुन सुहेल अहमद के कत्ल पर सिंध भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। एमक्यूएम के यौम सोग के सिलसिले में कराची के बाद सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी शटर डाउन हड़ताल है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल से बहुत कम है। एमक्यूएम की अपील पर सक्खर की सड़कें वीरान हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर, जबकि शहर के तमाम कारोबारी मराकज भी बंद हैं। जाम शोरों में भी सड़कों पर हू का आलम है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, जबकि कारोबारी मराकज बंद हैं। मीरपुर खास भी सोग में डूबा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं, जबकि टायर भी नजर आतिश किए गए हैं। शाहपुर में यौम सोग के सिलसिले में बाजार और दुकानें बंद हैं। एमक्यूएम के कारकुनान के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। टंडो अलायार में भी यौम सोग पर शहर वीरान है, जबकि कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं। टंडो आदम में भी ताजिर हजरात ने यौम सोग पर शहर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी हैं और बाजार वीरान हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि वो सुहेल अहमद समेत एमक्यूएम के 36 शहीद कारकुनान का कातिल वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को समझते हैं। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने लंदन से जारी एक बयान में बताया है कि सुहेल अहमद को सरकारी एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। सुहेल अहमद की गिरफ्तारी के हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और वजीर आला सिंध समेत सबको इतला दी गई और उनकी गिरफ्तारी पर 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जब सुहेल अहमद की लाश मौज को गोट में फेंकी जा रही थी, उस वक्त वजीर आला सिंध असम्बली में 4 शोहदा की लाशें लाने वाले सोगोरान की आमद को हमला करार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुहेल अहमद के सफाकाना कत्ल पर भी वजीर आला सिंध ने एमक्यूएम के मरकज 90 और लंदन फोन करके उनसे ताजियत तक करना गवारा नहीं की। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि कारकुनों के कत्ल पर सब्र किया, लेकिन सब्र की भी हद होती है। तहम अब वफाकी या सूबाई किसी भी एजेंसी या किसी भी एहलकार ने किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया तो वो अपने किए का खुद जवाबदेह होगा। बात हो रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के यौम सोग के हवाले से। एमक्यूएम की अपील पर सक्कर समेत सिंध के कई शहरों में भी कारोबार जिंदगी मुअत्तल है और तालीमी इदारे बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा भी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। किरण मिर्जा सक्कर से हमें ज्वाइन करें। किरण, बताइएगा, इस वक्त सक्कर की सड़कों पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? ट्रैफिक ना होने के बराबर है।
जी, MQM की जानिब से यौम सोग के मौके पर सक्खर समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों जिनमें पन्नू आखिल, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर वगैरह में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। सक्खर के अहम कारोबारी और तिजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दिन का खासा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि चहल पहल बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई कम है मामूल से, और रोडों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से इंतहाई कम नजर आ रहा है। स्कूलों में और दफातर में हाजिरी भी आज हमने देखी है कि मामूल से कम रही, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस को शहर के अहम चौराहों पर नाफिज कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया किरण मिर्जा सक्खर की सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको आगाह करते हैं, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि ताजिर और कारोबारी हजरात 4 बजे अपना कारोबार खोल लें, और इस मौके पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने हड़ताल में साथ देने पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों का शुक्रिया भी अदा किया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से। राफे, आगाह कीजिएगा, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज MQM की जानिब से सिंध भर में शटर डाउन हड़ताल और पुरअमन यौम सोग का ऐलान किया गया था, और इस मौके पर तमाम कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील की गई थी। लेकिन अभी MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने ये कहा है तमाम ट्रांसपोर्टर हजरात से और कारोबारी हजरात से कि वो शाम 4 बजे अपना कारोबार और ट्रांसपोर्ट खोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ला सकते हैं। साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन ने तमाम ताजिरदारी और ट्रांसपोर्टर हजरात समेत बिजनेस कम्युनिटी से जो है वो इज़हार तशक्कुर किया है कि उन्होंने इस एहतजाज में MQM का साथ दिया, और जिस तरह MQM के कारकुनान मावराए अदालत किए जा रहे हैं, तो जो MQM ने एहतजाज किया उसने भरपूर हिमायत करते हुए आज अपना कारोबार भी बंद रखा और अपनी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखी, तो इससे इज़हार तशक्कुर किया है MQM कायद अल्ताफ हुसैन ने। और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया है कि तमाम कारोबारी हजरात और ट्रांसपोर्ट हजरात अपना कारोबार और ट्रांसपोर्ट 4 बजे खोल सकते हैं। तो इसके बाद अब शाम 4 बजे जो है वो शहर कराची की और सिंध की जो मामलात जिंदगी है वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है राफे, बहुत शुक्रिया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि ताजिर और कारोबारी हजरात अपना कारोबार 4 बजे दोबारा खोल लें। हड़ताल में साथ देने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है ट्रांसपोर्टर्स ताजिरों का। और आपको आगाह करते हैं कि MQM के कारकुन के कत्ल के खिलाफ आज कराची समेत सिंध भर में MQM की जानिब से यौम सोग मनाया जा रहा है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि हड़ताल में साथ देने पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ये भी कहना है उनका कि ताजिर और कारोबारी हजरात 4 बजे अपना कारोबार खोल लें। कराची समेत सिंध भर में मामलात जिंदगी मुअत्तल हैं, स्कूल्स बंद हैं और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। साथ ही साथ तमाम तर पेट्रोल पंप्स और कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है। कराची शहर में भी आपको बताते हैं कि यही सूरत हाल है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था कि प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। अलबत्ता वजीर तालीम निसार खोड़ो का यह कहना था कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे, लेकिन तमाम तर तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हैं, कारोबार भी बंद है और ट्रैफिक मामूल से कम है। और अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि ताजिर और कारोबारी हजरात अब 4 बजे अपना कारोबार खोल लें, और साथ ही साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स का और कारोबारी अफराद का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कराची में मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ कोटरी, जाम शुरू और दीगर इलाकों में कारोबार बंद। लियाकत मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के होने वाले इम्तिहानात के पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जाम शुरू से हमारे नुमाइंदे दिलदार जामवरी, हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। दिलदार, मजीद बताइएगा। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुन के बारवाई अदालत कत्ल के खिलाफ कोटरी और जामशोर में मुकम्मल तौर पर शटर बंद हड़ताल की गई है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोर में BDS नर्सिंग इम्तिहानात के पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर और मेरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोर में बसें न चलने के बायस तुलबा और तालबात की हाजिरी मुकम्मल तौर पर कम रही है। दूसरी जानब कोटरी और जामशोर के तमाम निजी स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में भी हाजिरी कम है। दूसरी जानब नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे और सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुलतवी हो गई है। दूसरी जानब कोटरी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जोन ऑफिस में मुत्तहदा के कारकुन जमा होकर स्याह पट्टियां बांधकर शदीद एहतिजाज किया और उन्होंने मुतालबा किया है कि मारवाई अदालत कत्ल का सिलसिला बंद किया जाए। ठीक है दिलदार जामरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में MQM के कारकुनान के कत्ल के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज नवाब शाह में भी यौम सोग मनाया जा रहा है। शहर के तमाम तर तिजारती मार्केट्स बंद हैं और ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। क्या सूरत हाल है नवाब शाह की, जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान थेबो से। रिजवान, आगाह कीजिएगा, नवाब शाह में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कराची में MQM के कारकुनान के कत्ल के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज यौम सोग मनाया जा रहा है। सोग के मौके पर
नवाबशाह शहर की अहम तिजारती मार्केट है, लियाकत मार्केट, कपड़ा मार्केट, मौनी बाजार, अस्पताल रोड, मार्केट रोड, मनवाबाद समेत दीगर मार्केटें बंद हैं, जबकि ट्रैफिक मामूल से कम दिखाई दे रहा है। शोक के मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शोक के दौरान स्कूलों में हाजिरी कम दिखाई दे रही है, जबकि कई निजी स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। शोक के मौके पर MQM नवाबशाह जोन के पर स्याह परचम लहराया गया है, और जहां कारकुनान ने बाजुओं पर पट्टियां बांधकर शोक मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनान शहीद सुहेल अहमद की नमाज जनाजा में शिरकत करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों और हमदर्दों से अपील की है कि वो MQM सोसाइटी सेक्टर यूनिट 64 के इंचार्ज सुहेल अहमद शहीद के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें और भरपूर तादाद में शिरकत करके शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करें। सुहेल अहमद की नमाज जनाजा तारिक रोड पर वाक़े मस्जिद रहमानिया में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें तारिक रोड पर वाक़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुहेल अहमद को 15 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनकी लाश मॉस्को के इलाके से मिली। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने यौम सोग की गैर मशरूत हिमायत करने वालों की मालूमात मुस्तकिल तंजीमी डायरी में दर्ज करने की हिदायत कर दी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने राब्ता कमेटी को कौम के दुख और दर्द में शामिल कारोबारी, तिजारती, सनती और दीगर छोटे बड़े कारोबार करने वालों के नाम अपनी तंजीम की मुस्तकिल डायरी में नोट कर लिए जाएं, ये कहना है अल्ताफ हुसैन का। अल्ताफ हुसैन ने राब्ता कमेटी को हिदायत की कि जल्दी हड़ताल की गैर मशरूत हिमायत करने वालों के लिए तशक्कुर की तकरीब का एहतमाम किया जाए। अल्ताफ हुसैन ने कहा, सियासी वाबस्तगी बालाए ताक रखकर इंसानियत का एहतराम करने वाले खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। राब्ता कमेटी तमाम अफराद को मदऊ करके शहर के दीगर मसाइल के हल पर उनकी आरा ले। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन सुहेल अहमद के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वजीर आला सिंध ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कराची में MQM कारकुन सुहेल अहमद के कत्ल पर राब्ता कमेटी की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद वफाक और हुकूमत सिंध हरकत में आ गई। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को फोन करके सुहेल अहमद के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। चौधरी निसार ने DG रेंजर्स और IG सिंध से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने भी MQM के रहनुमा बाबर गौरी से राब्ता करके सुहेल अहमद के कत्ल पर मजम्मत और अफसोस का इजहार किया और बताया कि वजीर आजम ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने MQM के कारकुन के कत्ल का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध ने भी कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। कराची में MQM के कारकुन सुहेल अहमद के कत्ल पर MQM ने यौम सोग और हड़ताल का ऐलान किया तो वफाक और सिंध हुकूमत के हुक्मरान हरकत में आ गए। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को फोन करके MQM के कारकुन के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। वजीर दाखिला ने गवर्नर सिंध को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। चौधरी निसार ने DG रेंजर्स और IG सिंध से भी वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने भी MQM के रहनुमा बाबर गौरी से फोन पर राब्ता करके कारकुन सुहेल के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। इसाक डार का बाबर गौरी से कहना था, वजीर आजम ने MQM के कारकुन के कत्ल का नोटिस ले लिया है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इम्तियाज शेख ने भी बाबर गौरी को फोन करके MQM के कारकुन के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। हुकूमत पर तनकीद के बाद गवर्नर पंजाब की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है और वजीर आजम की जानिब से गवर्नर पंजाब के बयानात पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब बताइएगा, इस तरह की बात हो रही थी कि गवर्नर पंजाब के बयानात पर नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, उनको हटाने की खबरें भी थी। जी, गवर्नर पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए थे धरने के दौरान। जब धरने के दौरान उन्होंने मुज़ाकरात की और इस दौरान ये बात सामने आई कि लंदन में उनकी ताहिरुल कादरी से मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने सबसे पहले आमिर गौरी ARY के आमिर गौरी को लंदन में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सख्त तनकीद की थी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर। उस वक्त से गवर्नर पंजाब जो है वो निशाने पर थे और अब चूंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि फैसला करने से सियासी नुकसान हो सकता था, अब गवर्नर पंजाब को ये कहा गया है कि अगर वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ रखते हैं, कंफर्ट नहीं है, तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं या फिर उनको फारिग कर दिया जाएगा।
اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر پنجاب اس بارے میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ البتہ گورنر پنجاب کی تبدیلی کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، اس پر عمل درآمد کا فیصلہ اب میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ اب گورنر پنجاب ایک طرف مشاورت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وفاقی حکومت بھی رابطے میں ہے آپس میں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے، لیکن امکان ہے کہ گورنر پنجاب اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تبدیلی کے بعد کوئی نام زیر غور ہے جن کو گورنر پنجاب بنایا جائے گا؟ یہ ابھی تک تو کوئی نئی نام سامنے نہیں آیا، لیکن یقیناً وہ نام جو ہے مسلم لیگ نواز میں سے ہی ہوگا اور میاں نواز شریف کے انتہائی اعتماد والے ہوں گے جس کو بھی لایا جائے گا، لیکن فی الوقت ایسا کوئی نام سامنے نہیں آیا کہ کون ہو سکتا ہے گورنر پنجاب، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ میاں صاحب کے قریبی آدمی ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ صابر شاکر صاحب۔ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کے حکومت پر تنقید کے بعد گورنر پنجاب کی تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے، اور حکومت اور گورنر پنجاب کے درمیان جو اختلافات ہیں دھرنے کے بعد سامنے آئے تھے اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کو وزیر اعظم کی جانب سے گورنر پنجاب کے بیانات پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور اب گورنر پنجاب کی تبدیلی کی بات سامنے آ رہی ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔